So as a part of the improve phase or as a standalone method, one of the things that you could look at is doing design of experiment. बाकी और सारे भी एडवांस डिजाइन्स अवेलेबल हैं, रिस्पॉन्स सरफेस, तगुची एक्सेट्रा. Just go through the slide that is shown to you. इसमें से कोई ऐसा टर्म है जो नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ. Yes, sir. We are good with this content on this page. Clear, Everyone? sir. Yes, sir. 4 टर्म्स हैं, y, x, noise और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x. यहां तक तो हम क्लियर हैं? Anyone who missed this? So, sir, basically, फिर ये 4 टर्म्स, levels, फैक्टर, लेवल और रेंज. that change the values for the X factor. सिंपल है. Can we move ahead? Response Levels means that we change the values for X factor to change the range and then see the effect. Say that again. No. Okay. Range फैक्टर लेवल का मतलब जेंडर में 2 लेवल है, मेल और फीमेल. What are the different levels that you Sir, have? range, it says extreme value for each factor determines. So is it like the highest or the max value, or? We are okay, everyone? These 4 terms? Correct. एक बेसिक आइडिया ये था एक्सपेरिमेंटेशन रन करने का, that experimentation could be done OFAT, मतलब 1 factor at a time. So OFAT is what was replaced by design of experiments. वहां पे आपके पास ये चैलेंज आ रहा था कि that when you are doing OFAT, you are essentially looking at changing one variable at one time while keeping others as constant. We are okay? OFAT करने से impact क्या पड़ता था? That you had to do large number of experiments. So sir, it means as you said कि इसमें OFAT के अंदर एक ही variable change हो सकता था, दूसरा constant रहता था. So मतलब दोनों change करके हम वो experiment run नहीं कर सकते थे. हाँ, okay. आपके पास खेलने का कोई स्कोप नहीं था. Understand 3-4 basic terms to be used in experimentation. One term which is referred to as main effect. Main effect का मतलब यहाँ है. Main effect का मतलब when I change my factor from level 1 to level 2, from its low level to its high level. Yes, sir. बात समझ में आ गई सर. एक बार और रिपीट कर दो. Main effect. Yes, no, black, white. मेरी बात समझ में आई? अच्छा. So मेरे पास एक फैक्टर है, लेट्स से जेंडर. मैंने उसका लो लेवल बोल दिया मेल, हाई लेवल बोल दिया फीमेल. तो जब मैं डेटा को मेल से फीमेल की तरफ मूव करता हूं, मेरे y में क्या होता है? Does my y improve or it goes down or what happens? You remember the main effect plot that we have drawn several times? Correct. So that is the main effect. Main effect का मतलब when it shows the effect on response, that is your y, when a factor moves from its low level to its high level. Ideally अगर आपने numerically लिया है, मैंने शुगर की 2 क्वांटिटी ली है, 10 ग्राम और 20 ग्राम, तो लो लेवल तो हो गया 10 ग्राम. Okay. 20 ग्राम हो गया हाई लेवल. जैसे कि अगर मैं if I just acknowledge level 1 to level 2, मॉर्निंग शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में अगर मैं बंदों को ले आऊंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे वाई के ऊपर? Everyone clear? ओके. ओके. इंटरेक्शन तो करके देख लेते हैं सर एक बार. करेक्ट. करके देखना है कि सिंपल है?
So let's say I was looking for main effect for रिजल्ट ही गलत। सो मेरे पास दो लेवल्स हैं, फेल और पास। किसी एक को लो मान लो, किसी एक को हाई मान लो, बिकॉज ये मैथमेटिकल वैल्यूज तो है नहीं कि खुद से उसको लो मिनट ऐप खुद से समझ जाएगा कि इसमें से लो कौन सा है, हाई कौन सा है। So when I move my factor from its low level to high level, let's say low was fail and high was pass. When I move from my low to high, what is the difference that I see in my project Y? So यहाँ fail बता रहा है that जब मैं fail लोगों को इस्तेमाल करता हूँ तो 11.82 किलोज टूटते हैं, जब मैं पास वाले लोगों को यूज करता हूँ तो 7.51, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है ना। मेरी सिग्निफिकेंट वर्ड यूज करना गलत है, बिकॉज सिग्निफिकेंट यूज करने के लिए हमको कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना चाहिए वेदर दे ओवरलैप और नॉट, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? इसी को मेन इफेक्ट कहते हैं। तो सर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में वी आर यूजिंग बेसिकली डीवीटी डेटा विजुअलाइजेशन टूल से यूज हो रहा है। तो सर एवरीवन अभी जो टू एनोवा में किया था, ओके कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, टूल यूज करने के पीछे उसका लॉजिक अलग होगा। ओके यस सर, टू एनोवा है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसका फर्जी नाम है। इट इज एसेंशियली टू एनोवा। यहां तक हम साथ साथ हैं एवरीवन? दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, entire Same thing, same data, randomization and replication. Repeatability also, When you say replicate, what do you mean? Replicate करने का repeatability हो गया ये replication. Right. Replicate is, say that again. I'm not using the same term as in MSA, but you are doing the same सर thing. चेक करने के लिए वेदर कहीं प्रोसेस में तो दिक्कत नहीं है, रिपीट कर, वो गलती तो नहीं कर रहा। why हमारा कांस्टेंट आ रहा है। चेक द आउटकम सर। To come out with an average, sir. To check whether the changes are impacting now do replication when I'm doing the same thing again. Maybe wrong. No. Sir, to check the tool that which we are using is actually correct. एक चीज समझो, okay, that could be one of the purposes, but replication करना क्यों है? Why do you want to? I'm asking you a question. One day it so happened that आपके बेटे के पेंसिल बॉक्स में एक उसके दोस्त का पेन आ गया। Are you concluding that आपका बेटा चोर है? Or do you want more evidence? Replication इसीलिए करते हैं, to ensure that. So can we say that then it is done to see if there is an error occurring, whether it is occurring again and again, or was it once? I have conclusive evidence towards whatever inference I'm drawing. I am not even going to the extent of saying error. I am saying कि मेरा जो भी आउटकम था, is it a matter of chance? हो सकता है कि तू अभी I have never played golf in my life, but मेरा एक पट मुझे डालना था, I was able to do that putt at one instance. पहली बार में मैंने एक होल डाल दिया. Is it a matter of chance or am I an expert Right, player? sir. Would you want me to get it done 20 times before you? तो सर यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट कर रहे हैं चेक करने के लिए कि एक्सपेरिमेंट इज गिविंग द राइट थिंग और नॉट, और कॉन्फिडेंस हमारा नलिफाई करना चाहता हूँ। मैं अपना एरर रिड्यूस कर,
बिल्कुल हम्म करेक्ट। अभी तुम कंक्लूड करने वाले हो, अभी तुम देख रहे हो कि किसी फीमेल का हैंडलिंग टाइम बहुत अच्छा था। आर यू सेइंग ऑल फीमेल्स विल डू वेल और डू यू वांट मोर सैंपल्स? आई विल वांट मोर सैंपल्स। अभी तुमने गूगल पे पढ़ा, फेसबुक पे पढ़ा अमेज़न का एक गंदा सा फीडबैक। आर यू सेइंग अमेज़न सक्स और डू यू वांट टू सी मोर सैंपल्स टू बी एबल टू से गुड वर्क डन, बैड वर्क डन? वो एक एनी सेट नंबर सर सिग्निफिकेंट या फिर इट कंट्रीब्यूटर है डिपेंड्स? या नहीं है, दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर फॉर योरसेल्फ। बट मुझे फिर भी इसीलिए एक्सपेरिमेंट को बार-बार करना होता है। हाँ, मतलब ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि मतलब मैं सैंपल साइज को निकालूं कि मैं इतना 10 बार I mean, करूंगा, I 15 बार think, करूंगा। Raman, that will be बार करिएगा उतना कॉस्ट derived पड़ेगा। by cost and time constraint. Right, right. Absolutely. And the sample size needed to make for that particular test. हर टेस्ट का अपना एक सैंपल साइज का नीड है। राइट। उतने रेप्लिकेट्स उसको चाहिए। जब तुम कैलिब्रेशन करने बैठते हो तो तुम्हारे पास आर्लांग का या उस दिन जो तुम कैलकुलेटर दिखा रहे थे ठीक सर, रमन, Yes, sir. वो कैलकुलेटर बता रहा था तुमको कितना सैंपल साइज चाहिए। बायस नहीं होनी चाहिए ना सर कोई, क्लियर है? अनइंटेंशनली बायसनेस ना आ जाए उसमें। The other concept is randomization. Randomize क्यों करूं? Why should experiments be random? क्योंकि होगा क्या कि when I am doing my test, I could base my test runs on convenience. सबसे पहले मैं QA1 से आंसर लूंगा, फिर मैं QA2 से आंसर लूंगा, फिर मैं QA3 से आंसर लूंगा। हो सकता है ये जो ऑर्डर मैं फॉलो कर रहा हूँ टेस्ट रन करने का, इसी की वजह से कुछ सिस्टम में बायस आ जाए। Minitab says, please ensure that you randomize your test runs. Yes, sir. Yes sir. Is it applicable to DOE? It is applicable to every experiment in the world. Everyone with me? इसका इंग्लिश रिस्पॉन्स है जो थर्ड लाइन लिखा हुआ है रैंडमाइजेशन में, वो पढ़ लो जरा। Yes sir. It will help identify certain lurking variables that you have missed. आगे बढ़ो। सीधा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में हो जाता है। So first step is to create factorial design. I am creating a 2-factor design. यहाँ दिख रहा है आपको number of factors 2। मैं डिजाइन में गया, मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स को 4 कर दें। एक ही एक्सपेरिमेंट को 4 बार करना है मुझे। It has taken 2 variables, A and B, x1 and x2 if you were to call them. 2 ही लेवल हमने लिए हैं, 2 फैक्टर लिए हैं। Yes. So it is saying level 1 से क्या आया, लिया है 1 1 1 1 और एक लो लिया है -1 -1। हाँ भाई, We are together everyone. अभी कहाँ कुछ आया है? अभी तो ये ऑर्डर तय हुआ है। Now you will decide your mind. अब ये एक्सपेरिमेंट आप एक्चुअली कंडक्ट करेंगे और अपने y का वैल्यू भरेंगे। Let's say you are researching whether gender has anything to do with handling time, whether shift has anything to do with handling time. Assume that A is gender and B is shift. 1 is male, -1 is female. ना उल्टा कर देता हूँ, -1 is male, 1 is female.
-1 is in B, -1 is morning shift, -1 is evening shift, +1 is morning shift. यहां तक हम साथ साथ हैं. तो सर यहाँ पर हम इस वाले रो में हम चेक कर रहे हैं कि फीमेल प्लस मॉर्निंग. हाँ, डेटा पुल कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड देन हैव टू कैप्चर डेटा. चेक कहाँ कुछ कर रहे हैं, अभी तो डेटा कलेक्ट करेंगे. सो आई हैव फीमेल. मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो इवनिंग शिफ्ट में काम कर रही है. मैं उसका एक कॉल का ड्यूरेशन नोट कर लूंगा, एक्चुअल ड्यूरेशन. एक फीमेल मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रही है, उसका कितना आया. फीमेल इन द इवनिंग शिफ्ट. इवनिंग शिफ्ट डिपेक्ट कर रहा है और 1 मॉर्निंग शिफ्ट डिपेक्ट कर रहा है. बी सी. ओके. Yes. हाँ, हमने वैसा ही किया है. Everyone with me so far? -1 मतलब मेल इन इवनिंग शिफ्ट, फीमेल इन मॉर्निंग शिफ्ट, मेल इन मॉर्निंग शिफ्ट, फीमेल इन इवनिंग शिफ्ट. नहीं, Yes, sir. -1 क्या Yes, sir. मेल इन इवनिंग शिफ्ट. Do you guys understand what I've done so far? मेल मॉर्निंग. अब मैं रैंडमली डेटा भर रहा हूँ. -1 and 1, -1 and 1, 1 1. -1 and 1 मतलब मेल इन मॉर्निंग. -1 मेल इन इवनिंग. -1 मेल and मॉर्निंग, 1 मेल इवनिंग. मतलब मेल इन मॉर्निंग. फीमेल इवनिंग. मेल इवनिंग हुआ ना. अरे -1 and -1 म्हणजे मेल इवनिंग. Yes. यहां तक हम साथ साथ हैं. What did I start with? I went to design of experiments, factorial. I said create a factorial design. Once I did that, इसने मुझसे पूछा number of factors और मुझसे पूछा design. I did all of that. It created. सर इसने 16 ही डेटा पॉइंट क्यों दिए हैं? ऐसा कुछ लॉजिक मतलब कहीं से निकला? रन ऑर्डर इसने डिफाइन कर लिया है कि पहले कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. हाँ. एक सेकंड. हमेशा ध्यान. हाँ, अच्छा. अगर तेरे पास 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर्स. हाँ. चलो एक फैक्टर का मुझे अलग अलग लेवल बताओ, मेल फीमेल बस. दूसरे वाले फैक्टर का बताओ मॉर्निंग इवनिंग. सो मुझे मेल चाहिए मॉर्निंग में, मेल चाहिए इवनिंग में. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए इवनिंग में. वही. हाउ मेनी रन्स विल ऑलवेज हैव? इट विल ऑलवेज बी L राइट सर, समझ level to the power of गया. factor. And it will always be level to the power of factor. फॉर्मूला लिख लो अगर just in case. It will always be level to the power of factor. तो हमारे पास लेवल्स कितने थे? 2. फैक्टर कितने थे? 2. तो 2 to the power of 2. 4 बार इसका रेप्लिकेशन करना था. Times. एक चेन आया. तो मैंने इसको बोला. क्लियर है सर. इफ यू रिमेम्बर रेप्लिकेट्स मैंने हाँ, इसीलिए
इसीलिए उसको उसके पास टोटल 16। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक का एक्सपेरिमेंट यहाँ तक तो मुझे उसने खुद से बना के दिया, क्रिएट फैक्टोरियल डिजाइन। उसके बाद मैंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट रन किया और ये वाला कॉलम भर लिया, काम खत्म। नाउ आस्क इट टू एनालाइज। everyone can see this? वाइट को बोल दो एनालाइज कर ले भाई। 0.02 फिनिश, I mean हो गया। Okay. डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज impacting इनका impact वैल्यू कितना है मंजे का है? इम्पैक्टिंग नॉट इम्पैक्टिंग? Not impacting, sir. not It's great. impacting बी का पी वैल्यू कितना है? इंटरैक्शन का पी वैल्यू कितना है? वही 62 62%, sir. 69. आर स्क्वायर वैल्यू कितना होना चाहिए? That's good. Yeah. है Okay. कितना? 61.72 almost 62 नो, यू शुड ऑलवेज लुक एट, जब एक से ज्यादा फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज लुक एट आर स्क्वायर एडजस्टेड। Sorry, sir. What the model is? Okay. ऑलमोस्ट 62%। इसका मतलब द मॉडल इज ट्रस्टवर्दी। 45 तो 45. इतना रिलायबल नहीं है। ट्रस्टवर्दी, बट वो फ्यूचर कितना प्रेडिक्ट कर पाएगा? आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड कितना आ रहा है? Constant, sir. तो अगर तुम ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट करोगे, ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाते हैं? minus 101.9 101.9 9 into a आप क्या करूं? Yeah. then Minus minus 88.9 88.9 into B. Plus 32.1 A plus B. into ab Yeah. इसी के साथ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का बेसिक लॉजिक साफ होता है। How is it different than जी, the sir. 2 ANOVA that we were studying? इसी डेटा पे 2 ANOVA भी करके देखें। यहाँ तक हम साथ साथ हैं एवरीवन? इसके साथ दो ग्राफ सर वो बनाए जा रिस्पॉन्सेस सकते पे हैं। क्लिक ओहो, मेन इफेक्ट क्या बता रहा है? यस सर। सर जब हम इसको रन कर रहे थे हम इस -1 को रिप्लेस भी कर सकते थे जो हमने डिसाइड करा था फेल पास जो भी नाइट शिफ्ट मॉडल। one level to its another level. Everyone? अगर करिएगा तो आपको जाके यहाँ करना पड़ेगा। Yes, sir. And you'll have to define कि आपके फैक्टर्स क्या क्या है। सर इसमें अगर 3 फैक्टर है तो वहां जाके 3 फैक्टर्स यहाँ तक हम लोग साथ सिलेक्ट साथ कर लो तो खत्म हो गया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सर जो टाइप ऑफ डिजाइन है इसका कुछ मैटर करता है? ये 2 फैक्टोरियल 2 लेवल फैक्टोरियल वगैरह जो ऊपर लिखा हुआ था। बिंदास। मतलब इसमें तो गोता लगाना पड़ेगा सर, फिर काफी कुछ
समझ गया। फ्रैक्शनल फैक्टोरियल अलग होता है, फुल फैक्टोरियल अलग होता है। नहीं वो उतना देखते हुए तो समझ में आएगा कि 2 या ANOVA। ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इट इज, अगर अनोवा समझ में आता है तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट तुमको आता है। जब तुमको डेटा अवेलेबल है, राइट, मैं भी वही सोच रहा था कि जब तुमको आप डेटा अवेलेबल है तो हाइपोथेसिस करते हो, नई डेटा अवेलेबल है तो एक्सपेरिमेंट सेटअप करके रन करते हो, इसीलिए उसको डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बात करते हो। हाँ, इसका रिस्पॉन्स सरफेस डिजाइन और तगुची बनाने लगोगे तब आएगा लाइफ में तो मजा। रियल लाइफ सिनेरियो में आउटसाइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं केपीओज और बीपीओज काइंड ऑफ सिनेरियोज, ये काम आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अगर आपको टूल आता है ना तो आप उसका इस्तेमाल करना अगर आपको आता है, देन टू आंसर टू अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस विल डिपेंड ऑन सच एक्सपेरिमेंटेशंस।